دہلیز دل ہے ان کا قدم خیریت سے ہوں، مولا نے رکھ لیا ہے بھرم خیریت سے ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا نے رکھ لیا ہے بھرم خیریت سے ہوں۔ اور ان کے بارے میں مت پوچھیے، ان کی کامیابی تو بہت پہلے سے لکھی جا چکی ہے، انہیں کچھ مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مزید کرنے کی ضرورت۔ کوئی بہت بڑا IPS افسر بنے گا تو 1 لاکھ 1.5 لاکھ ریٹائر ہوتے ہوتے 2 لاکھ تک اس کی تنخواہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو ایسے ہی نواز دیا ہے کہ اس کی مزید ضرورت نہیں ہے، کھانی ہوتی رہتی ہے اور کام چلتا رہتا ہے نا۔ ان بزرگوں کی دعاؤں سے فقیر کو بھی اللہ نے نوازا۔ لیکن میں جو سب سے زیادہ خوش ہوتا ہوں، جو کام مجھ سے پہلے علامہ الحاج نثار احمد مصباحی صاحب قبلہ نے کیا، اپنی والدہ کو لے کر عمرہ کرنے گئے، پھر میں بھی پہنچ گیا، حضرت نے تو حج ادھر بھی حج، پھر خواہش ہے کہ ایک بار بغداد شریف، کربلا شریف اور مدینہ شریف کا سفر ہو۔ زندگی میں بات صحیح ہے صاحب، آپ جو قوم مسجد تک نہیں جا سکتی وہ بیت المقدس تک جائے گی۔ سب سے پہلا جو معاملہ ہے اس قوم کو مسجد تک پہنچانا ہے۔ جس دن ہم مسجد تک پہنچ گئے انشاءاللہ ہم بیت المقدس تک بھی پہنچ جائیں گے، پہنچ جائیں گے، مگر اس کے لیے ہمیں بدلنا ہوگا، مزاج کو بدلنا ہوگا، کردار کو بدلنا ہوگا، اخلاق کو بدلنا ہوگا، ہماری سوچیں بدلنی ہوگی۔ ہماری قوم کی بیٹیاں کہتی ہیں مولانا صاحب آپ لوگ تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، ہم لوگ جب نقاب پہن کے کالج میں جاتے ہیں نا تو بڑی بے عزتی ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا لوگ کہتے ہیں تم لوگ اولڈ ماڈل ہو، 1400 سال پرانی زندگی جی رہی ہو، اتنا فیشنیبل زمانہ آ گیا، دیکھو کیسے کیسے لباس چل گئے، بس تم مسلمانوں کی بیٹیاں ہو، قیمتی لباس پہنا کر تجھے نقاب ڈال دیا جاتا ہے۔ میں کہوں گا اپنی قوم کی شہزادیوں سے، شہزادیوں اگر زمانہ تجھے اولڈ ماڈل کہتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھنا تجھے قبیلہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے کہنا او نیو زمانے کی لڑکیوں، جنس پھاڑ کر جسم دکھانا تجھے مبارک ہو، اور پھٹے ہوئے دوپٹے میں پیوند لگا کر اپنے سر کی بالوں کو چھپانا خاتون جنت کی سنت ہمیں مبارک ہو۔ ہمیں ضمیر بیچ کر نیو فیشن نہیں اپنانا ہے، ہمیں کردار بیچ کر نیو فیشن نہیں اپنانا ہے، ہمیں عزت کا سودا کر کے نیو فیشن کو نہیں اپنانا ہے، ہمیں کسی کی بلیٹ اور موٹر سائیکل پہ گھوم کر نیو فیشن کو نہیں اپنانا ہے۔ ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، ضمیر بھی زندہ رہے، سیدہ خاتون جنت کا کردار بھی زندہ رہے، کردار بھی زندہ رہے۔ ظاہر سی بات ہے میں آپ سے کہوں گا آج مزار شریف پہ عرس کی تقریبیں ہوتی ہیں، سلطان رضا اپنی قوم کے نوجوانوں سے پوچھنا چاہے گا بغداد شریف ہم پہنچتے چادر لے کر، اجمیر شریف ہم پہنچتے ہیں چادر لے کر، بریلی شریف ہم پہنچتے ہیں چادر لے کر، کچھوٹا شریف ہم پہنچتے ہیں چادر لے کر، صاحب دیوا شریف ہم پہنچتے ہیں چادر لے کر، یاد رکھیے گا بہار شریف ہم پہنچتے ہیں چادر لے کر، حضور نعمت العلماء کی بارگاہ میں ہم پہنچتے ہیں چادر لے کر، حافظ ملت کی تربت پہ ہم پہنچتے ہیں چادر لے کر۔ اے میری قوم کے شہزادوں، تم اکیلے 100 ولیوں کی قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہو۔ سلطان رضا کہنا چاہے گا کوئی اللہ کا ولی تمہاری چادر کا محتاج نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا ہماری قوم کی بیٹیاں اپنے سروں پر تمہاری چادروں کی محتاج ہے، اس لیے یاد رکھنا مزار شریف پہ چادریں بعد میں چڑھانا، اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کی سروں پہ چادریں پہلے چڑھانا تاکہ دین بھی زندہ رہے، کردار سیدہ فاطمہ الزہرا بھی زندہ رہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، غوث الورا کانفرنس، غوث اعظم کانفرنس، نعرے تکبیر، مفتی
अभी मैं गोड़ा मीनाइया में गया था तकरीर करने, मुफ्ती महमूद साहब किबला थे, तो बोले कि आप सिवान के रहने वाले? बोले जी। बोले कि अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा कि हजरत जब मेरी तकरीर हो गई तो कहा कि हम लोग समझे कि आप 50-60 साल के होंगे जितनी शोहरत है, लेकिन आने के बाद लगा कि वो 30-35 साल का आदमी आ गया है। तकरीर के बाद वहाँ के बहुत सारे उलमा थे, पूछे कि आप सिर्फ तकरीर ही करते हैं या और भी कोई काम करते हैं? मैंने कहा मैं तकरीर भी करता हूँ, 2 मदरसों का नाजिम भी हूँ और सरकारी स्कूल में मुलाजिम भी हूँ। 10 बार पहले वो लोग देखे, कहा उसके बाद भी खिताबत करते हैं। मैंने कहा ये मेरा पेशा नहीं था, इन बुजुर्गों ने हज़रत अल्लामा निसार अहमद साहब नाम इस्माइल, इनका इखलाक, इनकी मोहब्बतें आज भी मुझे याद है। जब मैं इदारे शरिया पटना में पढ़ता था ना, तब बुलाकर जलसों में लेकर जाए। जाहिर सी बात है, शफ़क़तें मोहब्बतें कभी इंसान को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। जिंदगी में इन बातों को कुछ लोग ऊंचाइयों की मंजिल पर पहुंचने के बाद अपने माजी को भूल जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमने हमारे पीछे किन लोगों का हाथ रहा, किन लोगों ने आपके साथ मेहनतें की। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, ये दौर बड़ा नाजुक दौर है साहब, ये बड़ा पुरफतन दौर है जिसमें हम और आप जी रहे हैं। यकीनन मज़ारों पर चादरें भी चढ़ाइए। आज लोग मिलाद मनाते हैं, हर आदमी मिलाद मनाता है, मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? बेटी के मिलाद में, बेटी की शादी में मिलाद, बेटे के अकीके में मिलाद, कोई इंतकाल कर गया तो मिलाद, हर महीने आपकी बस्ती में मिलाद। वो मेरी कौम की शहजादियों, तुम भी मिलाद सुनती सुनाती हो, मिलाद खूब मनाते हैं, खूब मनाइए। हज़रत अल्लामा मुफ्ती महताब साहब किबला कहेंगे, आप इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं कहूँगा मिलाद मनाने वालों, अब तक अपनी बस्ती में हजारों मिलाद मना चुके हो, एक बार तुम साहबे मिलाद को भी मना लो। मिलाद तो बहुत मनाते हो, लेकिन एक बार मिलाद वाले मुस्तफा को भी तो मनाओ। होगे मौलाना, मिलाद वाले मुस्तफा को मनाने के लिए क्या करना होगा? मैं कहूँगा हाँ, मिलाद मनाने के लिए रुदल भाई का टेंट जरूरी है, शामियाना जरूरी है, लाइटिंग जरूरी है, उलमा की जरूरत है, खुतबा की जरूरत है, शोरा की जरूरत है, सामाइन की जरूरत है, और मिलाद वाले को मनाने के लिए नमाज की जरूरत है, रसूलुल्लाह की सुन्नत की जरूरत है, कुरान की तिलावत की जरूरत है, बेटियों को पर्दे की जरूरत है, सीरत फातिमा की जरूरत है। याद रखना, मिलाद मनाने के लिए महफिल की जरूरत है, मिलाद वाले को मनाने के लिए नमाज जैसी बरकत की जरूरत है, रसूलुल्लाह की सुन्नत की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा सिवानी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिलाद वाले को मनाने के लिए दुरूद शरीफ पढ़िए, नमाज पढ़िए, सच बोलिए, शराब से तौबा कीजिए, जुआ से तौबा कीजिए, ज़ना से तौबा कीजिए, बेहयाई बुराई से तौबा कीजिए, रिश्वत से तौबा कीजिए, बुराइयों को छोड़ दीजिए, अच्छाइयों को अपना लीजिए और साहब पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाने वाला बन जाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जब मेरी उम्मती का कोई शख्स नमाज पढ़ता है तो मेरी आंखों को ठंडक पहुंचती है। बताओ मेरी कौम के शहजादों, ईमानदारी से बताना, रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है? रसूलुल्लाह के दिल को सुकून पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है? सुल्तान रजा कहना चाहेगा, शराब पियोगे आका को तकलीफ होगी, जुआ खेलोगे दिवाली में आका को तकलीफ होगी, ज़ना करोगे आका को तकलीफ होगी, नाच गाने बाजे का बाजार गर्म करोगे आका को तकलीफ होगी, बेहयाई और बुराई को फरोग दोगे आका को तकलीफ होगी, मगर मस्जिद में जाकर सजदा करोगे आका मुस्कुराएंगे, माँ बाप की खिदमत करोगे नबी मुस्कुराएंगे, भाइयों की मदद करोगे नबी मुस्कुराएंगे, गरीबों को खाना खिलाओगे नबी मुस्कुराएंगे, पड़ोसी हिंदू हो या मुसलमान उसकी मदद के लिए बढ़ जाओगे नबी मुस्कुराएंगे, उलमा की कदर करोगे नबी मुस्कुराएंगे, माँ बाप की इज्जत करोगे नबी मुस्कुराएंगे, खाने से पहले
पड़ोसियों को खिलाओगे नबी मुस्कुराएंगे। इसलिए साहिबों याद रखना, अगर हम सिर्फ मिलाद ही मनाते रहे तो याद रखना हम जल से रोज कामयाब होते हैं, आने वाले कभी कभी कामयाब होते हैं। इसलिए याद रखिए, मिलाद भी मनाइए सुभान अल्लाह, लेकिन मिलाद वाले को भी मनाइए। तो कितने लोग हैं जो मिलाद वाले मुस्तफा को मनाना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर एक बार बता दीजिए, कितने लोग मनाना चाहते हैं? नौजवान लगता है बेचारे नहीं समझ पाए, जाहिर सी बात है, हाथ नीचे रखिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े नेक लोग हैं। इधर न देखिए, आपकी तवज्जो सिर्फ मेरी तरफ हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी कौम के शहजादों, आपने देखा होगा कि साहब 11वीं शरीफ में गौसे आजम की याद, रजब शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की याद, शब बरअत में हजरत अवैस करनी की याद साहब। और आगे बढ़िए, जो ही साहब सफर का महीना आता है, आला हजरत की याद, मुहर्रम का महीना आता है, इमाम हुसैन की याद, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है, साहब मुस्तफा जाने रहमत की याद। लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा, अलग अलग हम यादें तो बहुत मनाते हैं, लेकिन क्या रबीउल अव्वल खत्म हो जाए, रबीउल अव्वल का महीना खत्म हो जाए तो नबी की याद नहीं आएगी? क्या 11वीं शरीफ का महीना खत्म हो जाए गौसे आजम याद नहीं आएंगे? क्या मुहर्रम का महीना खत्म हो जाए इमाम हुसैन याद नहीं आएंगे? क्या शबान का महीना खत्म हो जाए हुजूर नेमतुल उलमा की याद नहीं आएगी? बताओ ईमानदारी के साथ, क्या 11वीं शरीफ का महीना खत्म हो जाए सरकारे सुरकाही की याद नहीं आएगी? मैं कहूँगा सुनो, तो फिर कहोगे मौलाना सबकी याद एक बार में कैसे मनाएंगे? अलग अलग तारीखें हैं, इसलिए अलग अलग यादें हैं। साल के 365 दिन है और कई लाख नहीं कई करोड़ औलियाए कराम है, दिन कम और यादें ज्यादा है। तो मैं कहूँगा सबकी याद इकट्ठे मनाओ। कहोगे मौलाना वो कैसे? मैं कहूँगा साहिबो, सबकी याद अगर इकट्ठे मनाना चाहते हो तो तुम नमाजी बन जाओ, इंशाअल्लाह सबकी याद मुझे आती रहेगी। आप कहोगे मौलाना कैसे? मैं कहूँगा देखो, चाहे मस्जिद हरम हो, चाहे मस्जिद नबवी शरीफ हो, चाहे बैतुल मक़दिस शरीफ हो, चाहे दिल्ली की जामे मस्जिद हो, चाहे तेरी बस्ती की मस्जिद हो, याद रखना जब जब नमाज पढ़ोगे एक तरफ सजदा होगा, दूसरी तरफ नबी और आले नबी पे दुरूद पढ़ोगे, और तीसरी तरफ तहियात में अल्लाह के वलियों पर सलाम पढ़ोगे, सलामुन अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अब जो ही सलाम पढ़ोगे इबादिल्लाहि सालिहीन तो साहब सिद्दीकीन पर सलाम हो गया, सालिहीन पर सलाम हो गया, अंबिया पर सलाम हो गया, मुरसलीन पर सलाम हो गया, सारे औलिया पर सलाम हो गया। अब बाहर जाओ, मुझे कहने दो, ऐ मेरी कौम के शहजादों, अलग अलग याद मनाने के लिए उर्स के दिन महफिलें करना और सबकी याद रोज मनाने के लिए नमाजी बन जाओ। फज्र पढ़ोगे वलियों की याद आएगी, ज़ोहर पढ़ोगे वलियों की याद आएगी, असर मगरिब इशा पढ़ोगे वलियों की याद आएगी। एक नमाज ऐसी लाकर दिखाओ, सजदा हो अल्लाह के वलियों पे सलाम ना। नारे तकबीर, और सदा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जा देखिए, हम लोग मसलके आला हजरत का नारा खूब लगाते हैं, मसलके आला हजरत, जरा हाथ उठाकर बोलिए मसलके आला हजरत। साहब बरेली शरीफ भी हम लोग इसी अकीदत में जाते हैं, मगर बरेली शरीफ से आने के बाद लोग कहते हैं सुरमा लाए हैं, अंगूठी लाए हैं, टोपी लाए हैं, गमछा लाए हैं। मैं कहूँगा बरेली शरीफ जाइए, अंगूठी लेकर ना आइए, टोपी लेकर ना आइए, कुर्ता पैजामा लेकर ना आइए, अमामा लेकर ना आइए, बरेली शरीफ से लाना है तो बरेली के आला हजरत का अकीदा लेकर के आइए। जब अकीदा लेकर आएंगे दुनिया में भी कामयाब होंगे, मरने के बाद कब्र और हश्र में भी कामयाब होंगे। मुफ्ती सुल्तान रजा सिवानी, नारे तकबीर, नारे
ये टोपियां खत्म हो जाएंगी, अंगूठियां खत्म हो जाएंगी, साहब ये कपड़े और लिबास खत्म हो जाएंगे, लेकिन रजा ने जो हमें अकीदा दिया है, कसम खुदा की दुनिया में भी कामयाबी की जमानत है और मरने के बाद कब्र और हश्र में भी कामयाबी की जमानत। ये साहब आप बरेली शरीफ जाइए तो बरेली शरीफ से अकीदा लेकर के आइए। इसलिए मैं अपनी कौम की शहजादियों से कहूंगा, ये साहब मैंने इसलिए कहा, अभी मैं 27 तारीख को बरेली शरीफ गया था, कुछ लोगों ने कहा हजरत उर्स में तो आपको कई साल खिताब किए हुए हो गया, हम लोग की ख्वाहिश है कि आला हजरत पे कुछ बोल दीजिए। तब मैंने ये तकरीर की थी और कहा था बरेली शहर में आने वालों, यहाँ से सुरमा और सलाई और मोमबत्ती और अगरबत्ती और टोपियां लेकर न जाओ, बरेली शरीफ आओ तो अहमद रजा का अकीदा लेकर के जाओ। साहब इसी अकीदे को लेने के लिए पीर जमात अली शाह आए थे, इसी अकीदे को लेने के लिए मुहद्दिस आज़म हिंद आए थे, इसी अकीदे को लेने के लिए हुजूर हुज्जतुल इस्लाम आए थे, इसी अकीदे को लेने के लिए हुजूर अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी आए थे, इसी अकीदे को लेने के लिए हुजूर हाफिज मिल्लत आए थे, इसी अकीदे को लेने के लिए हुजूर मुजाहिद मिल्लत आए थे। ज़माने ने कहा अहमद रजा, या अहमद रजा सबका अकीदा एक तरफ, अहमद रजा तेरा अकीदा एक तरफ। जाहिर सी बात है, अगर कोई गैरों का अकीदा लेगा तो बद अकीदा हो जाएगा, और अहमद रजा का अकीदा लेगा तो सुन्नी सही अकीदा होगा, सुन्नी सहीहुल अकीदा हो जाएगा। इसलिए साहिबों याद रखिएगा, मैं अपनी कौम की बेटियों से कहूंगा, आज आपको सर पे दुपट्टा रखने में शर्म आती है ना, मैंने अभी कुछ दिनों पहले कलकत्ता रेलवे स्टेशन पर उतरा, बड़े शर्म की बात, साहब बाप एकदम बिल्कुल फुल लिबास में है, माँ नकाब पहनी है बुढ़ापे में, और बेटी जींस पैंट टी शर्ट पहनकर जुल्फे लहराते हुए ट्रॉली बैग खींच रही है। अब साहब माँ को पास इतनी हिम्मत नहीं है, बेटी से कहे मैं बूढ़ी होकर पर्दे में हूँ और तू जवान होकर हुस्न दिखा रही है, क्या तुम सिर्फ मुहर्रम में फातिहा ही कराती है, क्या तुझे सैयदा खातून जन्नत की सीरत याद नहीं है, सैयदा फातिमा ज़हरा है। अल्लाह अल्लाह, साहब मौत का वक्त है, सरकार मौलाए कायनात से गुजार होती है, ऐ सरकार मौलाए कायनात मेरे शौहरे नामदार, जब मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मेरे जनाजे को दिन में नहीं रात में उठाना, ताकि किसी गैर की नजर फातिमा के जनाजे पे न पड़ जाए। आप जरा सा ज़हन पे सोचो मेरी कौम की शहजादियों, सैयदा खातून जन्नत ने जनाजा को भी दिन में निकालने से मना कर दिया ताकि किसी की नजर मेरे ऊपर पड़ जाए। आज हमारी कौम की बेटियां तालीम के नाम पे आवारगी अख्तियार करे और फेसबुक पे गैरों की तरह लाइव आए, अपने जिस्म का मुजाहरा करे, कपड़ा उतार करके जिस्म का दिखावा करे, सिर्फ इसलिए न करती हो कि करोड़ों फैंस तेरे हो जाएंगे, व्यू बढ़ेगा, तुझे यूट्यूब और चैनल से पैसा मिलेगा। ये सारे पैसे हेज है, ये सारी दौलतें हेज है। सुन, जिस सैयदा खातून जन्नत ने इज्जत और आबरू की हिफाजत की और ज़माने को पर्दे का पैगाम दिया, उस सैयदा खातून जन्नत की इज्जत का ये हाल कि मैदान महशर में जहां सब जमा होंगे वहां पर हुक्म होगा, लोगों निगाहें नीची करो, इसलिए कि अभी सैयदा खातून जन्नत गुजरने वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पूरा मजमा खड़े हो जाइए, खड़े होकर गुले गुलसारे अशरफियत पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत औलाद